Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of first semester. Madam Kokab Saeed is here with the new video lecture on a very important topic, parts of judgment. The topic is written in front of you people, parts of judgment. आप लोग बार बार मुझे कह भी रहे थे कि मैम इसको हमारे लिए क्लियर करें बिकॉज यू came through these terms, stare decisis or obiter dicta or sometimes ratio decidendi while studying or going through the topic of precedents. So today मैं इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ in order to explain these terms to you people. Although हम थोड़ा introduction की हद तक रहेंगे, I'll not go into the depth or the extraordinary details of these terms, but I'll inshallah try my level best to give you a very good brief, a comprehensive introduction regarding these terms. As we discussed we had discussed the topic of precedents earlier. We discussed that the precedents are the judgments of the courts of law which are followed in future cases by the same courts or by all the inferior courts of the country. So precedents, earlier decisions of the courts of law, early judgments of the courts of law which are followed, which are respected by the courts of the same rank and by all the lower courts, lower judiciary in the country. Now coming to the point that हमने यूज़ किया एक वर्ड जजमेंट कि भाई जजेस जब कोर्ट्स में बैठते हैं वो कोई केस डिसाइड करते हैं और फिर उसको डिसाइड करने के बाद एक जजमेंट देते हैं, ठीक है, एक अपना डिसीजन देते हैं रिगार्डिंग द केस. तो उस जजमेंट को फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स. उस जजमेंट को फॉलो करना है हमने फ्यूचर में लाइक टाइप ऑफ सिचुएशंस में, ठीक है. तो हमें हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय जजमेंट और व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द जजमेंट. कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं फॉलो करनी ज़रूरी और किस तरीके से फॉलो करनी है, ठीक है ना. कौन सी चीज़ फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ फॉलो नहीं करनी है एंड कौन सी चीज़ को किस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है ना, उस जजमेंट को. तो ये एलिमेंट्स या ये पार्ट्स ऑफ जजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट हमें इस चीज़ को हमारे ऊपर क्लियर कर देंगे कि असल में प्रेसिडेंट क्या है, उसको किस तरीके से फॉलो करना है और प्रेसिडेंट्स का कौन सा हिस्सा है, जजमेंट का कौन सा हिस्सा है जो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स these parts, the first part is known as stare decisis, as it is written on the board, stare decisis. Second part is obiter dicta or obiter dictum, and the third one is ratio decidendi. ठीक है. वन बाय वन मैं इसको इन सारी चीज़ों को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह ताला, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी बट इंशाल्लाह आप उसको समझ जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई discuss stare decisis, the term stare decisis with you people. The term stare decisis को हमें इनको आसानी से समझने के लिए first we have to understand their meaning. So the term stare decisis is made up of two words, stare and decisis. Stare means stick and decisis means decision. So here the term stare decisis means stick to the decision, of the court of law. It is the policy of the court to stand by the precedents, to stand by the decision and not to disturb the settled point. सो बड़ी ऑब्वियस पॉलिसी है कि स्टैंड बाय रहना है, स्टैंड बाय पॉलिसी ऑफ द कोर्ट, पॉलिसी ऑफ कोर्ट. ये जो स्टेयर डिसाइसिस है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द कोर्ट. पॉलिसी ऑफ द कोर्ट टू, इफ यू कैन रीड इट, स्टैंड बाय द डिसीजन, टू स्टैंड बाय द डिसीजन and not
to disturb the settled principles, settled points. So once the courts have laid down the principle of law to certain state of facts, it should be followed, it should be applied in all the future cases. So stare decisis decision, पॉलिसी ऑफ द कोर्ट ये होती है कि जब एक दफ़ा एक केस डिसाइड हो जाए, उसको फुली एग्जॉस्ट करके, फुली उसके पॉइंट्स को एग्जॉस्ट करके उसको फाइनली डिसाइड कर लिया जाए, तो ज़रूरी है कि वो कोर्ट और सारी इंफीरियर कोर्ट्स उसको अप्लाई करेंगी, उस सेटल्ड प्रिंसिपल को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, उस सेटल्ड प्रिंसिपल को डिस्टर्ब नहीं करेंगी. सो स्टेयर डिसाइसिस जो है वो डिसीजन पे कायम रहना, उस डिसीजन को साथ लेके चलना, उस डिसीजन जब एक दफ़ा वो सेटल हो गया, जब डिसीजन हो गया किसी केस के अंदर, तो फिर उसी के ऊपर स्टिक रहना है, बार बार नए तरीके से कोई रूलिंग या वर्डिक्ट नहीं देना है, क्योंकि ये इंसाफ का तकाजा है. हमने प्रेसिडेंट्स में भी पढ़ा कि क्यों प्रेसिडेंट्स को इतनी अहमियत दी जाती है, क्यों उसको फॉलो किया जाता है, जबकि हर बंदा लीगल एक्सपर्ट है, कोई नया आने वाला वो अपनी मर्जी से उसको डिसाइड कर सकता है. बट वी डिस्कस्ड कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द जस्टिस, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी ऑफ द लॉ, और ये कि वो जो लीगल एक्सपर्ट जो एक दफ़ा एक चीज़ को अच्छे तरीके से वो एग्जॉस्ट करके प्रॉपर आर्गुमेंटेशंस के बाद फुली उस पे पॉइंट ऑफ लॉ को एक्सप्लोर कर लेता है, तो फिर बार बार उसमें तब्दीलियां नहीं आनी चाहिए, उन प्रीवियस जजेस के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देने के लिए. तो यही चीज़ है कि स्टेयर डिसाइसिस क्या है, प्रेसिडेंट स्टेयर डिसाइसिस कि स्टिक रहना है डिसीजन के साथ. जब एक दफ़ा डिसीजन हो गया, जब एक दफ़ा जजमेंट आ गई, तो पॉलिसी ऑफ द कोर्ट ये होती है कि हमने उस डिसीजन के साथ स्टैंड बाय रहना है, उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना है, और उस सेटल्ड प्रिंसिपल को बार बार जो है चेंज नहीं करना है इन लाइक टाइप ऑफ सिचुएशंस एंड लाइक टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस. अब हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स जो होंगे वो मौजूद होंगे, तो फिर स्टेयर डिसाइसिस की टर्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हमने स्टेयर डिसाइसिस मतलब स्टिक टू द डिसीजन रहना होगा, हमने उस डिसीजन को साथ लेके चलना होगा. नंबर 1, डेलिब्रेट डिसीजन. नंबर 1, डेलिब्रेट डिसीजन ऑफ द कोर्ट. डेलिब्रेट, सॉरी, deliberate decision. The decision should be deliberate, solemn, जिसको हम कहते हैं, एक प्रॉपर किया हुआ डिसीजन जिसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन ना आया हो, जिसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा ना हो. अ डेलिब्रेट एंड सोलमन डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. नंबर 2, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स. प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेशन, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो डिसीजन लिया गया हो. ठीक है. प्रॉपर मतलब ये कि पार्टीज को फुली अपॉर्चुनिटी मिली हो उसमें अपना ओपिनियन बताने की, उस केस को डिस्कस करने की. तो पहला क्या हो गया, डेलिब्रेट एंड सोलमन डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ. नंबर 2, मेड आफ्टर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर. एंड नंबर 3 इज, और जब वो प्रॉपरली डिसाइड हो जाएंगे, जब वो प्रॉपरली डेलिब्रेट डिसीजन होगा, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के बाद होगा, ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. क्वेश्चन ऑफ लॉ, या यूं इसको अलग पॉइंट बना लेते हैं, क्वेश्चन आपकी आसानी के लिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ फेयरली डिसाइडेड, fairly decided, क्वेश्चन ऑफ लॉ फेयरली डिसाइडेड, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो बाइंडिंग हो जाएगा. ठीक है. तो फिर वो हमारे लिए बाइंडिंग हो जाएगा. और किसके ऊपर बाइंडिंग होगा ये भी हमें पता होना चाहिए. सेम कोर्ट,
plus all inferior courts, ऑल इंफीरियर कोर्ट्स, सेम कोर्ट और सारी इंफीरियर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स जो होंगी, इंफीरियर कोर्ट्स मतलब लोअर कोर्ट्स जो होंगी, उनके ऊपर ये बाइंडिंग होगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल में इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि स्टेयर डिसाइसिस क्या होता है। वंस अगेन एक शॉर्ट सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे कि पार्ट्स ऑफ जजमेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं, स्टेयर डिसाइसिस, ऑबिटर डिक्टा एंड रेशो डेसिडेंडी। स्टेयर डिसाइसिस को हम कर रहे हैं। स्टेयर डिसाइसिस मींस स्टिक टू द डिसीजन when once particular case is properly discussed and decided by the court of law and a judgment, particular judgment is given by the learned expert judges of the court, that decision should be followed in all the future cases in like type of situations, in like type of circumstances. ठीक है, लेकिन उस डिसीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसके अंदर होने चाहिए, तो फिर वो आपके लिए वो आपके लिए स्टेयर डिसाइसिस होता है। नंबर 1, डेलिब्रेट डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। उस कोर्ट जो डिसीजन दिया है वो डेलिब्रेट मतलब बाकायदा एक सोलमन, एक रीजनेबल और एक प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश ना हो। एक मुकम्मल, एक प्रॉपर किस्म का, सोलमन किस्म का डिसीजन होना चाहिए। नंबर 2, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स। फिर उस डिसीजन को प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स, दोनों पार्टीज शुड हैव द प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, उनको मुकम्मल आर्ग्यूमेंट्स की अपॉर्चुनिटी दी गई हो। 3, क्वेश्चन ऑफ लॉ फेयरली डिसाइडेड, और फिर उसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आया है उस को डिसाइड करते वक्त उस केस को उसको प्रॉपर तरीके से डिसाइड किया है। और नंबर 4, फिर उसके बाद वो आपके लिए बाइंडिंग हो जाता है, उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती, और वो लाइक टाइप ऑफ सिचुएशंस में बाइंडिंग, इस यहाँ पे आई शुड ऐड द वर्ड बाइंडिंग इन लाइक टाइप ऑफ केसेस। उन लाइक टाइप ऑफ केसेस में फिर वो बाइंडिंग हो जाता है। अब किन के ऊपर बाइंडिंग होता है? कोर्ट ऑफ सेम रैंक एंड ऑल द इंफीरियर और लोअर कोर्ट्स। आई शुड राइट द वर्ड लोअर, कहीं आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। इंफीरियर और लोअर कोर्ट्स के ऊपर फिर वो बाइंडिंग हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि रेशो डेसिडेंडी जो होता है वो हमेशा पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर डिसीजंस को देखती हैं, वो जजमेंट को देखती हैं कि अगर उस केस में, फलां केस में अगर इसी तरह का सेम केस था, चोरी हुई, सेम टाइप ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस थे, कब मर्डर किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी का, तो अब इस केस में भी सी ने डी का मर्डर किया है, वही सिचुएशन, वही सर्कमस्टांसेस हैं, या उसमें वो गया, वो बंदा दीवार फांद के दूसरे घर में, तो उस की वजह से एक बंदे का हाथ टूट गया, मार धाड़ हुई और हाथ टूटा, तो उसको इतनी सज़ा हुई। तो ये भी तकरीबन वही केस है, ये भी दीवार फांद के गया और मार धाड़ के सूरत में थोड़ा बहुत दूसरे बंदे को जख्मी कर दिया। तो दैट पर्टिकुलर डिसीजन शुड बी फॉलोड इन दिस केस एज वेल। ठीक है, तो पार्टीज के लिए तो सिर्फ वो डिसीजन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो है दिस part of the judgment which is known as stare decisis is always important for the parties. ये अब याद रखना है आपने। ठीक है, जब हम रेशो डेसिडेंडी पे जाएंगे तो फिर मैं उसके लिए एक और चीज़ आपको बताऊंगी। ठीक है, तो दिस पोर्शन, दिस पार्ट, स्टेयर डिसाइसिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टीज। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द जजमेंट और सेकेंड एलिमेंट ऑफ द जजमेंट विच इज obiter dicta. Obiter dicta, I can give you lots of examples regarding the obiter dicta, but मैं अपनी वीडियो को बहुत prolong नहीं कर सकती। इंशाल्लाह when we will have a live session on Wednesday from 10 AM to 11:30 AM, तो हम उसको in depth, in detail with examples discuss करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा मैं आपके लिए introduce करा देती हूँ कि what do we mean by obiter dicta. Obiter, second part of the judgment is obiter dicta. डिक्टा और डिक्टम भी कहते हैं, डिक्टा और डिक्टम। ठीक है, अब ये भी दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाए। द वर्ड ऑबिटर मीन्स बाय द वे, बाय द वे, and dicta means statement, statement
और रिमार्क, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है, कोई रिमार्क है, ठीक है, कोई डिक्टेशन है, ठीक है, तो ऑबिटर डिक्टा, द सेकंड एलिमेंट ऑफ द और द पार्ट ऑफ द जजमेंट इज ऑबिटर डिक्टा. ऑबिटर मीन्स बाय द वे एंड डिक्टा मीन्स स्टेटमेंट और रिमार्क. सो ऑबिटर डिक्टा कलेक्टिवली क्या मतलब हो गया? अ रिमार्क और द स्टेटमेंट और द डिक्टेशन विच इज गिवन बाय द वे. अब चूंकि जजमेंट है तो कौन ये देगा बाय द वे, ये रिमार्क कौन पास कर सकता है, ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है? तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट, ये रिमार्क जो है वो जज देगा. उसने डिसीजन देते हुए, उस केस को डिसाइड करते हुए कोई रिमार्क, कोई बाय द वे कोई बात की, तो वो कहता है कि दिस पोर्शन, दिस पार्ट ऑफ द जजमेंट इज नॉट बाइंडिंग. ठीक है ना, क्योंकि ये बाय द वे, फॉर एग्जांपल ये किस फॉर्म में हो सकता है, इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस फॉर्म में हो सकता है, फिर आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल हो सकती है मोरालिटी से, रिलीजन से, ठीक है ना. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं. नंबर 2, कोई ऑब्जर्वेशन. नंबर 3, रिमार्क्स की फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, कोई इस तरह का इलिस्ट्रेशन हो सकती है, कोई सजेशन हो सकता है. ठीक है, सजेशन हो सकता है, कोई इलिस्ट्रेशन, वही एग्जाम्पल होगी. तो कोई भी इस फॉर्म में ऑबिटर डिक्टा हो सकता है. जब एक कोर्ट के अंदर कभी कोई केस लगता है तो ज़रूरी नहीं कि जजेस, ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो जो है उस केस को डिसाइड करने के लिए बैठे होते हैं. जब केस डिसाइड होने लगता है तो ऑब्वियसली बहुत सी बातें होती हैं जो बाय द वे वो करते हैं. वो बातें जो होती हैं वो कोई एग्जाम्पल किसी की पेश कर सकते हैं, या कोई शेर पढ़ लिया, कोई ऑब्जर्वेशन अपनी बयान कर ली, या कोई रिमार्क दे दिया, या कोई सजेशन दे दी अदरवाइज. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बाय द वे की हुई बातें होती हैं जिनको हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं. और ऑबिटर डिक्टा इज नॉट नेसेसरी टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट्स ऑफ द सेम रैंक और बाय द लोअर कोर्ट्स. उसके लिए ज़रूरी नहीं है. क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने पहले कहा कि स्टेयर डिसाइजेस, डिसीजन के साथ आपने स्टिक रहना है. जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो डिसीजन में बयान की गई उसके साथ आपने स्टिक रहना है. और उस जजमेंट के अंदर कोई ऑबिटर डिक्टा अगर मौजूद है, कोई रिमार्क ऐसा, कोई एग्जांपल ऐसी, कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी, कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा जो कि बाय द वे जजेस ने यूज़ किया, उसको आप जो है फॉलो नहीं करेंगे. तो क्या कहता है कि ऑबिटर डिक्टा क्या हो गया? ऑबिटर डिक्टा means things said by the way. It is all that is said by the courts by the way. These are statements of law which go beyond the requirements of the particular case and lay down the rule which is either irrelevant or unnecessary for the decision of the case. And so they have no binding authority, but they have the authority merely persuasive. ठीक है, अब जो ये अभी मैंने आपके लिए जो चीज़ डिस्कस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस अगेन ऑबिटर डिक्टा 2 वर्ड से मिलके बनता है. ऑबिटर डिक्टा, बाय द वे, डिक्टा, रिमार्क और स्टेटमेंट. तो जब कोर्ट्स के अंदर जजेस कोई भी रिमार्क, कोई भी स्टेटमेंट किस फॉर्म में हो सकता है मैंने आपके लिए लिख लिया. कोई एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, रिमार्क, सजेशन, आर्ग्यूमेंट, एनालॉजी, इलस्ट्रेशन, कोई बाय द वे वो पेश करते हैं, और विच इज़ बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द केस होती है, जो ज़रूरी नहीं है केस के लिए, वो जस्ट बाय द वे उस चीज़ को बयान करते हैं. तो फिर उसको फॉलो करना भी उनको सेम कोर्ट्स के लिए, सेम रैंक की कोर्ट्स के लिए या लोअर कोर्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है ना, क्योंकि वो केस की रिक्वायरमेंट्स से के अलावा होती है, बिकॉज दे गो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस. ठीक है, और ये या तो इररेलेवेंट होती हैं या अननेसेसरी होती हैं. ये इररेलेवेंट होती हैं या अननेसेसरी होती हैं,
फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, एंड सो दे हैव नो बाइंडिंग अथॉरिटी एट ऑल। लेकिन इनकी अथॉरिटी परसुएसिव जरूर होती है जब हायर कोर्ट्स, जब सुपीरियर कोर्ट्स का ऑबिटर डिक्टा होता है और अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हिंट मौजूद हो तो फिर वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर समटाइम्स बाइंडिंग हो सकता है। बट इसकी अहमियत ऐसी होती है कि परसुएसिव यू मे और मे नॉट फॉलो। अगर आप चाहते हैं वही एग्जांपल, वही ऑब्जर्वेशन, वही रिमार्क फ्यूचर के जो आप केस में जजमेंट दे रहे हैं कि मतलब आपने उसको तो फॉलो करना है डिसीजन को, साथ ही साथ आप कहें कि ये चीज़ ऑबिटर डिक्टा है, ये ज़रूरी नहीं है, उसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको साथ लेके चल सकते हैं, वही एग्जाम्पल दोबारा कोट कर लें फ्यूचर में जब वो केस डिसाइड कर रहे होंगे लाइक टाइप ऑफ केस, या ऑब्जर्वेशन है उसको दोबारा लिख लें, दोबारा उस रिमार्क को कोट कर लें, उसका उस प्रीवियस जज का जो उसने उस जजमेंट के साथ दिया, तो आप भी उस जजमेंट को भी ज़ाहिर है आप एज अ प्रेसिडेंट यूज़ करेंगे और साथ उस रिमार्क को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, परसुएसिव मे और मे नॉट बी फॉलोड। तो दिस इज ऑबिटर डिक्टा, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट और द एलिमेंट ऑफ द जजमेंट, दैट इज रेशो डेसिडेंडी। रेशो डेसिडेंडी। नाउ एक चीज़ मैंने पीछे आपको बताई थी उसके बारे में, स्टेयर डिसाइसिस के बारे में, कि स्टेयर डिसाइसिस इज इम्पॉर्टेंट बिटवीन द पार्टीज। नाउ इसके बारे में भी मैं एक चीज़ आपको पहले से बता देना चाहती हूँ कि रेशो डेसिडेंडी इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेशो decidendi. Ratio decidendi. This part is always important for the judges, for the judiciary. This makes the important principle of judicial principle important judicial. This is important judicial principle. Sorry. अच्छा जी, अब वो क्या कहता है कि इसको भी हम दो पार्ट्स में कर लेते हैं इसके डिसीजन को, इसके मीनिंग को समझने के लिए। रेशो मीन्स रीजन, रीजन, एंड डेसिडेंडी मीन्स डिसीजन, डिसीजन। सो कलेक्टिवली रेशो डेसिडेंडी मीन्स रीजन ऑफ द डिसीजन, ठीक है। मतलब ये कि वो जो जजमेंट को फॉलो करना है वो तो पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जाहिर है वो तो यही कहेंगे ना कि ए ने बी का मर्डर किया तो सी ने भी डी का मर्डर ही किया है, तो क्यों ना जहाँ ए को जो पनिशमेंट हुई तो उसी को फॉलो कर लिया जाए और इसको जो सी को भी वही पनिशमेंट दे दी जाए। अगर क्योंकि उसको 10 साल कैद हुई है तो सी को भी इसमें 10 साल कैद होनी चाहिए, जस्टिस का तकाजा भी यही कहता है और वो लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन है, हायर कोर्ट का ओपिनियन है, तो हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। ज़ाहिर पार्टीज को तो के लिए वही इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी और द जजेस इज रीजन ऑफ द डिसीजन। दे विल नॉट ओनली गो विद द स्टेयर डिसाइसिस, वो सिर्फ डिसीजन के साथ स्टिक नहीं रहेंगे, बट दे विल लुक इनटू द रेशो ऑफ दैट डिसीजन। वो उसकी रेशो को भी देखेंगे, वो उसके रीजन को भी देखेंगे कि क्या रीजन था ए को वो पनिशमेंट देने का, क्या वी कैन वी अप्लाई द सेम पनिशमेंट फॉर द सी इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस। क्या सिचुएशन वही है, क्या लाइक टाइप ऑफ सिचुएशंस है, क्या रीजन ऑफ द डिसीजन वहां पे भी यही था और यहाँ पे भी यही है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर किया और उसको सजाए मौत नहीं दी गई, कत्ल अमद था, लेकिन उसको फॉर एग्जाम्पल उसको 10 साल की कैद दी गई क्योंकि उस बंदे ने कत्ल तो किया लेकिन उसका कत्ल जो था वो गलती से उससे जो है रैश ड्राइविंग से हो गया या मर्डर हो गया, क्योंकि वो जो था उसका इंटेंशन नहीं थी गोली चलाने की, बट ये साबित हो गया कोर्ट के अंदर, ज़ाहिर है इस चीज़ को साबित किया गया होगा कि भाई उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, वो जस्ट डराने के लिए बंदूक लेकर गया था लेकिन मर्डर हो गया, तो उसको 10 साल या 12 साल या 15 साल कैद दी गई। और फिर उस फ्यूचर में कोई और पार्टी आई सी ने, जिसमें सी ने डी का मर्डर किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ए को ये पनिशमेंट हुई तो सी ने भी तो डी का मर्डर ही किया है, तो क्यों ना सी को भी वही पनिशमेंट हो, सजाए मौत ना दी जाए। बट अब डिसीजन ज़ाहिर है पार्टीज के दरमियान तो डिसीजन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोर्ट्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, उन केसेस की रेशो, क्योंकि वहाँ पे है कि ये साबित हुआ था
कि वो मर्डर जो था वो प्योरली कत्ल अमद नहीं था, जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि वो डराने के लिए, महज डराने के लिए राइफल लेकर आया, जिसके बारे में उसको यकीन था कि इट इज़ नॉट लोडेड, और अचानक उसने चलाई और वो लोडेड थी और दूसरे बंदे का मर्डर हो गया। जबकि यहाँ पे सी फुली लोडेड गन लेकर गया, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही थी बाकायदा 2-3-4 सालों से। द रेशो और द रीजन इज टोटली डिफरेंट हेयर ऑफ मर्डर, of committing the murder, so the same punishment maybe cannot be applied. So the जुडिशरी के लिए, जजेस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रेशो। तभी मैंने आपसे हमेशा बात की जब भी कि प्रेसिडेंट्स आर टू बी फॉलोड इन फ्यूचर केसेस, बट in like type of situations, in like type of circumstances. Now these like type of situations or circumstances, how we can calculate those like type of situations and circumstances? Through these reasons, through this ratio. हमने उस डिसीजन की रेशो को भी देखना है। जब हम उसको देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन वही थी, क्या इसके डिसीजन को एज इट इज अप्लाई करना विल बी जस्टिस और नॉट। और अगर यहाँ पे ये एज इट इज अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि उनका रेशो डिफरेंट है, ऑल्दो जो क्राइम है वो एक है, बट रीजंस ऑफ द केस, सिचुएशन ऑफ द केस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो वही डिसीजन अप्लाई नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए जजेस के लिए या जुडिशरी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो रेशो डेसिडेंडी का प्रिंसिपल है। ठीक है ना। अब एक और चीज़ यहाँ से मैं आपके लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी कि हमेशा जब भी हम कोई देखें एक बिल्डिंग बनाते हैं या तो उसके दो पोर्शंस होते हैं। जब घर बनाते हैं हम लोग, एक कोई अच्छा सा अपने लिए स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये आपकी समझ के लिए है, सिर्फ चीज़ मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी यहाँ तक। एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन होता है और दूसरा कंक्रीट, कंक्रीट पोर्शन। एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन का मतलब होता है नक्शा, खाका, और कंक्रीट जब हम बाकायदा उस बिल्डिंग को बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई इमारत बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी बनाई है हमने, आप में से कोई अपना घर तामीर करना चाहता है तो वो एकदम तो ये नहीं होगा कि आओ जी सारे लगो और हम मुझे एक इमारत खड़ी करके दे दो, एक फाइनल चीज़ खड़ी करके दे दो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पहले आप क्या करेंगे, उसका एक खाका बनाएंगे। ठीक है, एक खाका बनाएंगे और उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी, आपको वो इमारत हासिल हो जाएगी। तो अगर आपकी इमारत किसी और को पसंद आती है, आपकी क्लास में वलीद ने, शहीर ने, माहीन ने कोई बड़ी खूबसूरत सा घर बनाया तो मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैं वही घर वैसा ही तामीर करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ घर बड़ा प्यारा है, मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा मुझे, ये नहीं कि वैसी बिल्डिंग मन उठा के मैं जो तैयार जो ला के रख दूँगी, ऐसा नहीं हो सकेगा। बल्कि मुझे भी उसी किस्म का एब्स्ट्रैक्ट से गुजरना पड़ेगा, मुझे भी उसी किस्म का नक्शा चाहिए, मुझे उसी किस्म का खाका चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही नक्शा मुझे भी फॉलो करना होगा। जब वही नक्शा मैं फॉलो करूँगी तो मेरे पास भी सेम टाइप ऑफ बिल्डिंग जो है वो बन जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप सोच लें कि जो स्टेयर डिसाइसिस और रेशो डेसिडेंडी की हैसियत, स्टेयर डिसाइसिस कंक्रीट पोर्शन है, एक जजमेंट का कंक्रीट पोर्शन, फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जजमेंट रेशो स्टेयर डिसाइसिस है। और उसका एब्स्ट्रैक्ट किसके अंदर मौजूद होता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट रेशो डेसिडेंडी में मौजूद होता है कि कैसे उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए जजेस ने किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, किन किन चीज़ों से मराहल से गुजर के वो आखिर में उस कंक्रीट डिसीजन तक पहुंचे। ठीक है, तो यानी कि वो हमारे लिए जो है कंक्रीट पोर्शन है, लेकिन कंक्रीट पोर्शन तक पहुंचने के लिए पहले एब्स्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा, मतलब रेशो को देखना पड़ेगा, रीज़न को देखना पड़ेगा। दैट्स इट स्टूडेंट्स, होप सो कि मैं इस काबिल हुई हूँ या मेरा लेक्चर जो है इतना मैंने पूरी कोशिश की कि जितना ईजी हो सके आपके लिए इसको ईजीएस्ट बनाऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है
प्रेसिडेंट की टर्म को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए या उसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए कि कैसे कोर्ट्स उसको अप्लाई करती हैं इन फ्यूचर केसेस इन फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन पार्ट्स ऑफ जजमेंट को समझें। तो मैंने कोशिश की कि आसान तरीन तरीके से आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाऊं। बहुत सी और एग्जांपल्स हैं विच वी विल डिस्कस इन अ लाइव सेशन, ठीक है। तो वंस अगेन एक थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि देयर आर 3 पार्ट्स और 3 एलिमेंट ऑफ जजमेंट। नंबर 1 इज स्टेयर डिसाइसिस, नंबर 2 इज ऑबिटर डिक्टा एंड नंबर 3 इज रेशियो डेसिडेंडी। स्टेयर डिसाइसिस इज द कंक्रीट पोर्शन ऑफ द केस। फिर यहाँ से कर लेती हूँ ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए। कंक्रीट पोर्शन ऑफ द जजमेंट एंड इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिटवीन द पार्टीज एंड once the case is fully properly decided after proper arguments, the point of law is fairly decided, then that decision is binding on for all the lower courts. This is what we call stare decisis. Second portion of the part of the judgment is obiter dicta. Then while discussing the case, while deciding the case, judges use so many remarks, so many observations or so many illustrations, examples from religion, morality, शेर व शायरी, कोई ऐसी चीज़ जो वो by the way use करते हैं while deciding the case, तो वो जो होती है it is not binding on the court to be followed, ठीक है, on the कोर्ट्स ऑफ द सेम रैंक एंड ऑन ऑल द इंफीरियर कोर्ट्स, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है कि वो उसको फॉलो करे, बिकॉज इट गो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन ऑफ द केस। इसलिए उसको जो है वो बाय द वे या ऑबिटर डिक्टा कह के उसको हम साइड पे रख सकते हैं, उसको फॉलो करना एज इट इज़ ज़रूरी नहीं। उसकी अहमियत जो होती है वो परसुएसिव होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है, अथॉरिटेटिव नहीं होती है, परसुएसिव होती है। लेकिन समटाइम्स सुपीरियर कोर्ट्स के दी हुई जजमेंट के अंदर जो ऑबिटर डिक्टा होता है, अगर उसमें किसी हद तक कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ के मुतल्लिक आपको कोई हिंट मिले या आपको कोई उसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उसके अंदर मिल रहा हो, तो फिर वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। मोस्टली ऑबिटर डिक्टा जो होता है बाय द वे कोई रिमार्क है, बाय द वे कोई बात है, तो उसको जो है वो आप जो है इग्नोर कर सकते हैं, कर लेते हैं जजमेंट के अंदर जब आप प्रेसिडेंट के तौर पे उसको फॉलो करते हैं। और थर्ड पोर्शन इज रेशो डेसिडेंडी। रेशो डेसिडेंडी मीन्स रीजन ऑफ द डिसीजन, इट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन ऑफ द केस। वो सारा खाका, वो सारी के सारा नक्शा जिसके ऊपर वो फाइनल जजमेंट बेस करती है, फाइनल कंक्रीट पोर्शन मतलब स्टेयर डिसाइसिस बेस करता है, वो जजमेंट बेस करती है, उसको हम रेशो डेसिडेंडी कहते हैं। ये पोर्शन हमेशा जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रिंसिपल फॉर्म करता है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पार्टीज के लिए तो जाहिर है हमेशा स्टेयर डिसाइसिस या फाइनल जजमेंट ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जुडिशरी के लिए, कोर्ट्स के लिए रेशो डेसिडेंडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स को फॉलो करने के लिए, उस जजमेंट को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है एक्सक्यूज मी, ज़रूरी है कि उसकी रेशो को देखा जाए, उस रीज़न को देखा जाए, जिन रीजंस में, जिस रेशो की वजह से, जिस रेशो में वो डिसीजन दिया गया, अगर वही रेशो यहाँ पर भी अप्लाई होती है और इस न्यू केस के अंदर भी अप्लाई होती है, तो फिर वेल एंड गुड, उसको उसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर रेशो सेम नहीं है, रीज़न ऑफ द डिसीजन सेम नहीं बन रहा है, तो वो जजमेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पे फॉलो नहीं की जा सकती। दैट्स इट स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आई हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द टॉपिक again in our live session. Thank you so much.